ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ حضرت، آپ کی دعائیں ہیں۔ پیغام نوٹ کرا دیں تاکہ عوام تک پہنچا دیا جائے۔ جی جی حضرت، جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ بنگلور میں کیا حالات ہیں ابھی آپ کے؟ بنگلور میں الحمدللہ ٹھیک ہے حضرت، حالات الحمدللہ فرقہ پرستی تو نہیں ہے یہ دیوبندی بریلوی؟ نہیں 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 نہیں، کوئی شدت پہ نہیں ہے، کوئی عروج پہ نہیں ہے، کوئی آپس میں رسہ کشی نہیں ہے کسی طرح کی۔ میڈیم ماحول ہے؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ، یہی ماحول ہونا چاہیے، سب مل کے چلیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مولوی۔ بھائی روزی روٹی کے لیے جب باہر نکلتے ہیں نا لوگ، اپنے روزی رزق کے لیے، اپنی محنت مزدوری کے لیے، پھر کوئی کسی فرقے کو نہیں دیکھتا۔ ہاں نہیں دیکھتا، صحیح بات ہے نہیں، پھر تو اپنی روزی روٹی سے مطلب ہے، کافر ہو، یہودی ہو، مسلم ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، بھائی سب کا سب سے جو ہے نا اخلاقی اعتبار سے اچھا تعلق کر کے اچھی تجارت کمانا ہے۔ اچھی تجارت کمانا، صحیح بات ہے۔ ہاں اچھی روزی روٹی کمانا ہے، بس یہ ہے لوگوں کا۔ اصلی میں کیا ہے، یہ بریلوی علماء نے نفرتیں بہت پیدا کر دی ہیں۔ جی جی جی، اس قدر نفرتیں پیدا کر دی ہیں کہ آدمی کو نماز پڑھنے میں ڈر لگے گا، مسجد میں جانے میں۔ جی جی مسجد سے باہر کر دیں، نہیں پڑھنے دیں گے، تم جو مسلمان نہیں ہو۔ جی جو حالات کو نہیں مانے گا تو اسے مسلمان نہیں مانیں گے، باہر کر دیں گے اس کو۔ جی جی عرس سے اعلان بھی ہوا نا، حالات کے عرس سے اعلان ہوا تھا بریلی میں کہ جو مفتی شمشاد گھوسی کے ہیں، انہوں نے کہا تھا، جی مفتی شمشاد صاحب نے، کہ جو مسلک کے حالات کو نہیں مانے گا، چاہے وہ سید ہو، یعنی مدنی ہو، ہاشمی ہو، بغدادی ہو، یا اجمیری ہو، یا بدایونی ہو، ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ بتاؤ، اس نے فرض قرار دے دیا مسلک کے حالات کو ماننا۔ اب تعبیر کیا کی ایک مولوی نے تعبیر یہ کی کہ مسلک حالات سے مراد مسلک امام اعظم ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہی مان لیا مسلک امام اعظم ہے، تو اس کا مطلب تین مسلک باطل ہو گئے پھر۔ تین مسلک باطل ہو گئے، صحیح بات ہے۔ شافعی مسلک باطل ہوگی، حنفی اور حنبلی اور مالکی تینوں باطل ہو گئے پھر اس حساب سے۔ جی جی، کہاں تک بچیں گے صاحب یہ لوگ؟ جی یہ لوگوں نے ایسی بس ہوائی فائرنگیں کری ہیں، یعنی انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ 30,000 روپے کی تقریر، 40,000 کی تقریر، کوئی 50,000 میں کرتا ہے، کوئی 30 میں کرتا ہے۔ وہ پاجامہ ان کا عام طور سے بریلوی علماء کا میں نے دیکھا ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں لوگ۔ ہاں ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے حضرت۔ وہ اس پر فخر کرتے ہیں، گھمنڈ سے چلتے ہیں پوری طرح سے۔ یعنی نیچے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گھمنڈ ہوتا ہے اچھی طرح سے۔ جی جی جی، وہ کہتے بھی ہیں کہ گھمنڈ سے پہننا حرام ہے، تو گھمنڈ تو ہے ہی تمہارے اندر۔ گھمنڈ نہیں ہوتا تو سنت پہ عمل کرتے، اونچا پہنتے۔ اونچا پہنتے، صحیح بات ہے۔ گھمنڈ بھرا ہوتا تھا ان لوگوں میں، نیچے لٹکا کے ایسے چلیں گے فخری انداز میں، ایسے کہ بہت بڑے ترم خان۔ جی جی، اور مسواک شریف بھی نہیں کرتے یہ علماء، زیادہ تر بریلوی علماء۔ نہیں، سنتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں حضرت، ہے سنتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سے پوچھو بھائی تم جو کر رہے ہو یہ سنت عمل ہے کہ یا حدیث سے عمل ہے؟ یہ نہیں پتا کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے۔ عمل تو دور کی بات ہے، سنت اور حدیث کا فرق ہی نہیں پتا انہیں۔ اچھا، دوسری بات، ان میں تفسیر کرنے والے عالم نہیں ہیں۔ نہیں حضرت، تفسیر ایک تو تفسیر بیان کرنے والے نہیں ہیں، اور فقہ پہ بولنے والے تو ہرگز نہیں ہے۔ ہاں فقہ وہ حدیث پہ جانتے ہی نہیں ہے زیادہ یہ لوگ۔ ہاں اب دیکھو، میں نے بھوپال کا بتایا کہ بھوپال میں پاس لسٹ بھیجی تھی، مفتی عبد الرحمان ندوی ہیں، وہ بھی تفسیر کرتے ہیں، مفتی عبد الرحمان ندوی تھا۔ جی جی، تو انہوں نے پوری لسٹ موبائل نمبر کے ساتھ بھیجی تھی کہ نواسی علماء بھوپال میں تفسیر کر رہے ہیں، علماء دیوبند، ایک ہی شہر بھوپال میں۔ جی 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 جی، اور پھر دلی میں الگ، کانپور میں الگ، لکھنؤ میں الگ، مدراس میں الگ۔ آپ کے بنگلور میں بھی میرے خیال سے 30 کے قریب علماء دیوبند تفسیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ تفسیر بیان کرنے والے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، انداز سے 50 تو ہوں گے بنگلور میں۔ مدارس مساجد کو ملا لیے تو 50 سے بھی زیادہ ہیں، یعنی تفسیر کرنے والے۔ ہاں تفسیر بیان کرنے والے الحمدللہ۔ یہ ان میں بریلویوں میں ایک بھی نہیں ہے وہ بنگلور میں؟ نہیں کوئی بھی نہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ ذالک الکتاب سے والناس تک کسی نے کوئی تفسیر بیان کی۔ میں نے تو آج تک کسی عالم کو دیکھا نہیں۔ 4 ہوئے ہیں، 4 عالم ان کے نام میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑے مفسر ہیں بریلوی طبقے میں، حضرت مولانا قاری ظہیر الدین، جو امام ہے اسماعیل حبیب مسجد بمبئی کے۔ جی جی، وہ تو تفسیر بیان کر چکے، قابل عالم ہے، میری ملاقات بھی ہے ان سے۔ جی تو لیکن ان کو تفسیر تو بیان کر دی انہوں نے، سب سے بڑے مفسر وہی ہیں بریلویوں میں۔ جی جی، لیکن علماء دیوبند کے ساتھ وہ علماء کونسل میں بیٹھ گئے تھے وہاں پر بمبئی میں، تو ان کو بریلوی 2 عالموں نے خارج قرار دے دیا اسلام سے، مطلب کہہ دیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یعنی وہ نماز نہیں پڑھی دیوبند والوں کے پیچھے، خالی بیٹھ گئے۔
हाँ बैठ गए जी। तो बैठने ही इतना बड़ा जुर्म हो गया कि वो एक ले दे के बड़े मुफस्सिर थे, में उनको भी खारिज कर दिया कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी, घूम रहा है। मुहद्दिस कबीर और मुस्तफा साहब ने, एक बरेली के मुफ्ती थे, उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने दोनों ने खारिज करा दे दिया, ये कह दिया कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी, ये उलमाए कौंसिल में देवबंदियों के साथ बैठता है। जी जी। एक तो वो बताए, वो तो है बड़े मुफस्सिर हैं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे हैं। और एक शेखुल कुरान का लक़ब था उनका, अब्दुल्ला साहब थे, वो फैजाबाद में करते थे, गालिबन इंतकाल हो गया, नहीं वो मुझे ध्यान नहीं है। दो, एक थे बांदा के गाजी रब्बानी साहब, वो भी मुफस्सिर थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तीन जी। और एक, अब आपको ताज्जुब की बात बताता हूँ कि कानपुर जैसे शहर, बड़ा शहर है, बेंगलोर की तरह ही है कानपुर भी, थोड़ा बहुत छोटा होगा बेंगलोर से कानपुर। जी जी। तो कानपुर में 70% के करीब बरेलवियत है, लेकिन इससे अंदाजा लगा 70% बरेलवियत के बावजूद यहाँ पर सैकड़ों आलिम है वहाँ पर कानपुर में बरेलवी, लेकिन एक भी तफसीर करने वाला नहीं था। तो इन्होंने 200 किलोमीटर दूर से मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब को इलाहाबाद से बुलाते थे तफसीर करने, वो भी महीने में एक बार। बकरा मंडी में वो आते थे, एक महीने में एक बार तफसीर करने, कानपुर से आते थे 200 किलोमीटर दूर से। जी जी जी। तो फिर एक बार मेरी मुलाकात हुई इनसे इलाहाबाद में, इसी बारे में मैंने पूछा, मैं कि साहब तफसीर कितनी हो गई, क्या वो बात हुई? तो कह रहा कि मैंने 1.25 पारे की तफसीर की और फिर जाना बंद कर दिया कि 200 किलोमीटर दूर से 200 किलोमीटर दूर जाना और आना, और बच्चों को पढ़ाना दालू गईनवाल में। तो कहा मैंने अब जाना नहीं, बंद कर दिया 1.25 पारे की तफसीर, वो भी 1.25 पारे की तफसीर करके आना बंद हो गए कानपुर। सुन लिया आपने? जी जी जी। एक मौलाना अकबर साहब हैं मुरादाबाद में, वो अब तफसीर कर रहे हैं। एक मुफ्ती खुर्शीद साहब है, वो मसवासी में कर रहे हैं। 6, ये 6 नाम मैंने आपको बताए हैं पूरे हिंदुस्तान के बरेलियों के जी। बाकी तो सुनने में नहीं आता कि गुजरात में कहीं बरेलवी तफसीर कर रहा हो या राजस्थान। हमारे एमपी में एक भी बरेलवी ने आज तक तफसीर बयान नहीं की। 5 पारे की भी तफसीर नहीं की, पूरे कुरान की तो बहुत बड़ी बात है, 5 पारे की पूरे एमपी में। और हमारे उस्ताद रईसुल उलमा मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश, मुफ्ती रईस साहब भोपाल के सबसे बड़े मुफ्ती हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने 2 बार मुकम्मल सुना दी तफसीर भोपाल में, माशाअल्लाह। एक बार तो मैं खुद मौजूद था, खत्म तफसीर हुई थी कबीट वाली मस्जिद में, और इसके बाद एक बार रोकी। अब तीसरी जगह मस्जिद साजिदा सुल्तान में तफसीर कर रहे हैं, उसमें भी लगभग आधा कुरान हो चुका है, सूरह मरियम तक बता रहे थे, सूरह मरियम तक हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। ये तो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने तफसीर बयान की है, 2 बार मुकम्मल कर चुके, तीसरी बार है। जी जी। और इसके अलावा एक और उस्ताद हमारे मौलाना सैयद शराफत अली साहब नदवी, वो भी बयान कर रहे हैं वहाँ पर। जी। तो वहाँ तो जाने कितने उलमा बयान कर चुके साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तफसीर बयान करने वालों की कमी नहीं है, हर जगह तफसीर बयान करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं कम कहीं ज्यादा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने बरेलियों के आपको नाम बताया 6 आलिम, जिनमें एक का तो बाइकाट कर दिया बरेलियों ने कि गुमराह है, 5 एक इंतकाल हो गया, 2। अब जो एक थे वो कानपुर आते थे, उनका आना जाना बंद हो गया, 3। और एक अकबर साहब मुरादाबाद में भी करते, भी बयान नहीं की, बस कर रहे हैं वो खाली, 4। एक मसवासी में है, वो करते हैं मुफ्ती खुर्शीद साहब, 5। एक और मैंने बताया था, ध्यान नहीं आ रहा मैंने आपको, वो हाँ अब्दुल्ला साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब थे, वो करते थे, बस 6 लोग। अब इससे अंदाजा लगाओ कि उलमाए देवबंद भोपाल में एक ही शहर में 89 मस्जिदों में करते हैं, और आपके बेंगलोर में बता रहा हूँ आपके 50 के करीब करते हैं तफसीर। बहुत है, मैं तो अक्सर मस्जिदों में सुना हूँ तफसीर का जो है ना, हाँ, कोई ना कोई आलिम दीन आते रहता है, कहीं हफ्ते के दिन, कहीं इतवार के दिन, कहीं 4 शंबे के दिन, कहीं जुमेरात के दिन, कहीं जुबा को, कहीं असर के बाद, नहीं असर के बाद तो नहीं, कहीं मगरिब के बाद, कहीं ईशा बाद, कहीं जोहर के बाद, मतलब मजलिसें रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो वो अल्लाह के रसूल का फरमान है ना, आखिरी हज में अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ। हदीस है ना, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि कुरान एक मेरी इतरत यानी अहले बैत, फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना होगे। बेशक। तो कुरान की तफसीर सबसे ज्यादा करने वाला भी हिंदुस्तान में कम बेश मेरे आइडिया से 5000 आलिम हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। जी अल्हम्दुलिल्लाह इतने होंगे, क्योंकि एक शहर भोपाल में 89, फिर 50 आपके बेंगलोर में, तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग जोड़ा जाए तो 4 या 5000 आलिम निकलेंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि दिल्ली में लगभग 200 आलिम हो जाएंगे, 100-200 तो दिल्ली में हो जाएंगे। सबसे ज्यादा तो यूपी में मिलेंगे आपको, यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा। हाँ, तफसीर करने वाले, तफसीर बयान करने वाले, हदीस पाक को बयान करने वाले मुफस्सिर कुरान और मुहद्दिस सबसे ज्यादा इन्हीं 2 स्टेट में है।
ہاں بتائیے آپ، کتنی بڑی کمی ہے ان لوگوں میں کہ قرآن کا علم ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، تفصیلی بیان نہیں کرتے لوگ۔ ان کو تو کیا ہے، جمعہ کے دن خطبہ ہوگا، اردو خطبہ ہوگا، پہلے اس اردو خطبے میں بیان ہوگا، وہ بیان اس طریقے کا ہوگا کہ بس وہ اولیاء اور اکابرین کے بیچ میں ان کے واقعات میں ہی گرد گرد گھومتے ہوئے آخر تک پہنچ جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جتنی مجلسیں ہوں گی نا اس میں غوث پاک کے من گھڑت واقعات یا اور کچھ دوسرے بزرگوں کے واقعات، بس اس کے علاوہ اور وہ امین القاضی نے کہا تھا نا، مالیگاؤں والے نے، کہ یہ کہا تھا کہ غوث پاک کے پاس چاند آ کے پوچھتا تھا کہ میں 29 کو نکلوں یا 30 کو نکلوں، جی جی جی، کبھی چاند نے آ کر ہمارے نبی سے نہیں پوچھا، آج تک نہیں پوچھا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ چاند نے آ کر ہمارے نبی سے پوچھا ہو، جبکہ قرآن میں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ لیکن وہ امین القاضی کی یہ لوگ تقریر آج بھی سن رہے ہیں، الیاس قاضی کو آج بھی مان رہے ہیں۔ الیاس قاضی اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبیک یا ابتار کے نعرے لگوا دیے، اپنا میلاد نامہ پڑھوا دیا، الیاس کی آمد مرحبا یہ سب نعرے لگوائے، اس کے باوجود اس کو آج بھی لوگ بہت بڑا مان رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور انہوں نے شروع کی تھی، شاید وہ ہے چلن میں یا بند ہو گئی معلوم نہیں، واللہ عالم، واللہ عالم تو وہ تو فاضل بریلوی لکھتے ہیں فتوے میں، ہاں واللہ عالم و رسولہ، واللہ و رسول عالم یہ لکھوانا شروع کیا تھا۔ ہاں یہ بھی بھائی، وہ رسول تو یہ تو حضور کے زمانے میں صحابہ کرام بولتے تھے، ہاں بولتے تھے، پردہ فرمانے کے بعد جو ہے پھر یہ لفظ کسی نے استعمال کیا ہی نہیں کیا۔ ہاں وہ تو صحابہ بولتے تھے حضور کے سامنے واللہ و رسول عالم، کئی حدیثوں میں ہے، وہ تو بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ فاضل بریلوی بھی تو یہ حدیث پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیوں واللہ و رسول عالم نہیں لکھا فتاوی رضیہ میں؟ جی جی، اچھا فاضل بریلوی نے پوری فتاوی رضیہ میں واللہ عالم ہی لکھا ہے۔ فتاوی افریقہ میرے پاس موجود ہے ان کا، اس میں بھی واللہ عالم لکھا ہے، اور ان کے شاگرد تھے مفتی شریف اللہ قمجلی، پوتے شاگرد، وہ بھی فتاوی شارح بخاری میں واللہ عالم لکھتے ہیں۔ جی سب نے واللہ عالم ہی لکھنا شروع کیا حضور کا پردہ فرمانے کے بعد، ہاں سب نے واللہ عالم واللہ عالم واللہ عالم، انہوں نے پھر نیا شروع کر دیا واللہ عالم و رسول۔ نہیں، اس نے فاضل بریلوی پر پس پردہ حملہ کیا ہے، الیاس قاضی نے حملہ کروایا ہے، یہ حملہ کروایا کہ دیکھو فاضل بریلوی واللہ عالم لکھتے ہیں اور ہم واللہ رسول عالم لکھواتے ہیں، ہم ان سے بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہ پس پردہ حملہ ہے۔ ایک طرف تو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، دوسری طرف وہ کیا کہتے ہیں سلو پائزن، مطلب انڈر گراؤنڈ حملہ، جی جی، انڈر گراؤنڈ حملہ، اوپر سے ماننے کا دعویٰ اور ظاہر میں دکھانے کو ماننا اور اندر سے حملہ کرنا ہے۔ اس سے فاضل بریلوی کی شخصیت مجروح ہوگی کہ یار فاضل بریلوی نے واللہ عالم کیوں لکھا پھر پوری فتاوی رضیہ میں؟ جی جی جی، تو الیاس قاضی بڑی آدمی ہے یار، یہ تو واللہ رسول عالم لکھوا رہا ہے، اس کے مفتی اب واللہ رسول عالم ہی لکھتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک رواج اور شروع کر دیا، ہاں دیکھو کہیں بھی ہم جب شروع کرتے ہیں کوئی بھی کام، چاہے تحریر ہو یا تقریر ہو، ہاں تو اس میں ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے، ہاں بے شک، یہاں سے شروعات ہو کر پھر ہم لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں بے شک۔ اب انہوں نے ایک چیز اور چلن شروع کر دی، بی برکتی بسم اللہ، بی برکتی بسم اللہ، یہ بھی شروع کر دیا، یہ بھی شروع کر دیا، الرحمن الرحیم ختم کر دیا، بی برکتی بسم اللہ۔ یہ تو اور نہیں باتیں میں نے سنا بی برکتی بسم اللہ، بھائی بسم اللہ کی برکت ہے، لیکن جب ہے نا جب اسے پوری پڑھو گے، اور بی برکتی کے الفاظ جو ہے کہیں ہے ہی نہیں، نہ تحریر میں نہ تقریر میں۔ اچھا میں نے آج تک علماء دیوبند کو، یا آپ تو ماشاءاللہ کیا معلوم کب فارغ ہوئے، 2000 سے پہلے ہی فارغ ہوئے ہوں گے آپ؟ جی جی، کب فارغ ہوئے تھے آپ؟ میں 95 میں حضرت، تو آپ کو لگ بھگ 27 سال ہو گئے، 29 سال ہو گئے حضرت۔ میرے خیال سے آپ کے استاد حضرت مولانا نصیر الدین خان صاحب ہوں گے؟ جی 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 جی، الحمدللہ، شیخ الحدیث، وہ کافی ٹائم رہے، ان سے پہلے فخر الدین صاحب تھے۔ ہاں مولانا فخر الدین صاحب، ان سے شاید آپ نے نہیں پڑھا ہوگا؟ نہ وہ نہیں، وہ تو ہمارے سے بہت پہلے کے زمانے میں۔ حضرت فخر الدین صاحب اور ان کے بعد یہی نصیر صاحب آئے۔ جی جی جی، تو آپ نے بتاؤ 27 سال میں کبھی آپ نے دیوبند سے، علماء دیوبند سے، یا وہاں دارالعلوم دیوبند میں، یا علماء دیوبند سے پورے انڈیا میں، یا گوگل پہ نیٹ میں کبھی آپ نے 10 منٹ بھی علماء دیوبند سے تھانوی صاحب، نادوی صاحب کی قصے کہانیاں سنے کہ دیکھو تھانوی صاحب کے یہ واقعات ہیں، 10 منٹ بھی مسلسل کسی نے بیان کیا آج تک؟ کوئی نہیں کرتا، اتفاق سے کبھی کوئی حوالہ آ جائے تو بات ایک الگ ہے، نہیں تو
کبھی ان کے اوصاف کو بیان نہیں کیا جاتا، کبھی نہیں بیان کرتے، واقعات کو بیان نہیں کرتے، ہم نے خود بیان سینکڑوں بہت بیان سنے، کبھی ان کا نام بھی نہیں لیتے، وہ کبھی کبھار لے لیتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار، ہاں کبھی اتفاق سے، ورنہ تو وہ 10 منٹ بھی مسلسل کسی نے آج تک، میں نے تو دیوبند سے آج تک 10 منٹ تقریر نہیں سنی ان کی شان میں۔ میرے خیال سے جتنے بھی ورلڈ میں موجود ہیں مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، یہ بھی کبھی بیان نہیں کرتے، ان کے موضوع بیان نہیں کرتے ان کی جو کتابیں ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی تو کتابیں ایسی ہیں کہ وہ تو ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے پڑھنا، علم کو سمجھنے کے لیے، وہ تو لائبریریوں میں اور اکابرین کے سمجھ لیجئے کہ کمروں میں ان کی کتابیں ملیں گی آپ کو۔ میرے خیال سے 1200 کتابیں لکھی ہیں، کتنی اللہ جانے، 1000 سے اوپر ہیں الحمدللہ ان کی کتابیں، 1000 سے اوپر کتابیں ہیں صاحب۔ اور میں نے تو آج تک کسی بھی دیوبندی کو حضور کہتے نہیں سنا، تھانوی صاحب کو حضور نانوتوی صاحب ہے، حضور، یہ وہ تو صرف حضرت کہتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ کے علاوہ نہیں کہتے۔ جی وہ تو رحمت اللہ علیہ اپنے عالموں کو بھی، تمام بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ سے مخاطب کیا۔ اچھا دیوبند والوں نے نہیں، یہ تو بڑے بڑے ولیوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، پیران پیر غوث پاک نے، امام ربانی حجر ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق صاحب، یہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام نے بھی اپنے سے پہلے والے بزرگوں کو جو صحابی نہیں تھے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ جی الحمدللہ، یہاں تک کہ تابعین تابعین تک کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ ہاں بالکل۔ اب یہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ ایک بار میری مفتی نظام الدین صاحب سے بات ہوئی وہاں پر بمبئی میں، کرلا کے ذریعے کہیں مل گئے تھے، امتحان لینے آئے تھے، مفتی نظام الدین صاحب ہیں، یہ بریلیوں کے بڑے مفتی ہیں، تو میں نے رضی اللہ عنہ پہ بات کی تو کہنے قرآن میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو سابقون الاولون صحابہ کی جنہوں نے اتباع کی بے احسان رضی اللہ عنہ ورضوان، ان کے لیے آیا ہے اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی۔ جی تو میں نے بتایا بعد میں کہ یہ شفا قاضی ایاز میں بھی یہ بحث دی گئی ہے کہ تابعین کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تو ان میں سے چند علماء نے کہا کہ ہاں اس آیت کی روشنی میں تابعین کو، کیونکہ سابقون الاول مہاجرین کی اتباع تابعین نے کی، تو اس لیے تابعین کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی چند علماء کا بیان ہے، لیکن بعد میں زیادہ تر اکثریت علماء کی یہی رائے قرار دیا کہ نہ کہا جائے تو بہتر ہے، صرف صحابہ کو ہی کہا جائے، صحابہ کی محدود ہے، وہ صحیح بات ہے، یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے، جنہوں نے رائے دی ہے نا انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں جو ہے نہیں انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہرگز نہیں لکھا انہوں نے، جنہوں نے رائے دی بھی نہیں لکھا، کتابوں میں نہیں ہے، نہیں ہاں، وہ صرف چند علماء کی رائے تھی، انہوں نے بھی رائے دی تھی، باقی علماء نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں رائے دی انہوں نے، حضرت رائے ضرور دی لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیا اپنی کتابوں میں۔ اچھا یہ گھماتے کیا ہے، دیکھو قرآن میں آیا والذین اتبعوا، تو یہ تو تابعین کے بارے میں ہے نا، جی تابعین تک کے چند علماء کی مرضی تھی، وہ بھی سب علماء کی مرضی نہیں تھی۔ جی پھر ایک اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ قرآن میں ہے، ایک عالم شاید انہوں نے دلیل دی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جی تو پھر تو ہمارے باپ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر تھا، تو اس لیے ہم اپنے باپ کو بھی کہہ سکتے ہیں پھر تو اس دلیل سے، اور مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر تو سبھی مومنوں کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ہے ہی نہیں کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ڈر موجود نہ ہو، پھر تو سب کو ہی رضی اللہ عنہ کہا جائے، رحمت اللہ علیہ کیا نہیں بند کر دیا جائے۔ ہاں تو یہ لوگ نہ جانے کس کس طرح سے پبلک کو گمراہ کرتے تھا۔ حضرت ان کی تعویلیں ایسی ہیں اور یہ جو تعویلیں کرتے ہیں نا اور یہ جو مطلب بیان کرتے ہیں وہ اتنا خراب اور اتنا غلط ہے انہی کی عقل و فہم سے باہر ہے وہ سب۔ ارے میں تو جو صدر مفتی تھے نا بریلی کے سب سے بڑے مفتی عبد الرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا، بڑے مفتی سے صدر مفتی، میں تو وہیں جہاں اعلیٰ حضرت کا گھر تھا وہیں بیٹھتے تھے، اوپر چھت کے اوپر دوسری منزل پہ۔ جی تو میری جوانی تھی جب میں آیا تھا گجرات سے، ہم ٹور لے کے آئے تھے جہاں میں امامت کرتا تھا، ادھر حضرت بوئی شیخ قلندر کے مزار پہ گئے، غریب نواز کے مزار پہ گئے، ہمارے ساتھ میں چند لوگ تھے وہیں کے گجرات کے، ساتھ میں ہم آئے تھے، تو میں وہ اوپر چھت پہ گیا، حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب سے ملا، میں نے وہاں پر دیکھا خانقاہ میں فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کو رضی اللہ عنہ، میری صاحب رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے خانقاہ میں، چلا یہ آیت پڑھو آپ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم جنات تجری من تحت الانہار، اس سے ترجمہ کروایا، کیا ترجمہ ہوا؟ میں کیا ترجمہ ہے، بے شک جو ایمان لائے نیک کام کیے وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو کہنا آئے نا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کے جو ایمان لائے نیک، میں کے ساتھ پھر تو تمام مومنوں کو کہہ سکتے ہیں
हम मोमिन तो फिर कहने लगे हाँ कह सकते हैं, वो तो इसके अलावा और कोई जवाब था ही नहीं उनके पास में। नहीं, जब ये आयत से दलील दे रहे हैं कि वैसे जो ईमान ला नेक काम किए अल्लाह की जन्नतों में दाखिल है, आगे आया रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ुअन, तो कहना आया ना रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा साहब फिर तो शायद की रोशनी में तमाम मोमिनों को कह सकते हैं, कहना हाँ कह सकते हैं। ये नहीं किस किस तरह से गुमराह करते हैं साहब, जबकि ये आयत सहाबा के बारे में है कि जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए नेक काम किए वो अल्लाह की जन्नतों में दाखिल, सहाबा की शान में है। यहाँ ईमान वालों से सहाबा मुराद है, क्योंकि कुरान तो नबी पर ही नाजिल हुआ है। यानी कहां से कहां ले जाके पब्लिक को छोड़ते हैं सारे लोग हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि बरेलवियों में एक तरीका और आम हो चुका है कि जब भी फाजिल बरेलवी के खानदान का नाम लेते हैं तो बड़े अदब से लेते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं उनके बेटे को, और उनके पड़पोते को हुजूर अजहरी मियां ताजुल शरिया, और हुजूर रिहान मिल्लत, हुजूर अकायद मिल्लत, यानी हुजूर लफ्ज जरूर लगाएंगे। और जब मैंने इनसे बात किया कई बरेलियों से, जैसे ही हुजूर सुन लिया मैंने कहा हुजूर ताजुल शरिया, मैं क्या अच्छा बता सबसे बड़े साहबी किसे मानते हैं आप, उम्मत में सबसे अफजल कौन है, तो एकदम कहते हैं हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर। मैंने किया यार ये बता कि अभी तो तुम हुजूर कह रहे थे अजहरी मियां को और मुफ्ती आजम को हुजूर, अब सहाबा का जब मैंने पूछा सबसे बड़े कौन है तो तुम हजरत कह रहे हो, हजरत अबू बकर हजरत उमर। फिर कहते क्या हजरत हुजूर में फर्क क्या है ये बताओ आप। अरे जब फर्क नहीं है तो तुमने इनको हजरत क्यों कहा, हुजूर अबू बकर क्यों नहीं कहा, हुजूर उमर क्यों नहीं लिखा आज तक किताबों में, वो कहते क्यों नहीं हो तुम लोग। आदम अलैहिस्सलाम को हुजूर आदम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते जब फर्क नहीं है तो, मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते बरेलवी। यानी अजहरी मियां को तो हुजूर कहेंगे, मुफ्ती आजम को हुजूर कहेंगे, और जब सहाबा की बात आएगी, अहले बैत की बात आएगी, अंबिया किराम की, तो सारे नबियों को ये हुजूर हजरत कहते हैं, सारे सहाबा को हजरत कहते हैं, तमाम अहले बैत को हजरत कहते हैं, और फाजिल बरेलवी के जितने भी खानदान के हैं उनको हुजूर कहते हैं। हुजूर और हुजूर का लफ्ज ये बहुत अदब के लिए बोला जाता है इनके नजदीक, जहाँ तो इसका मतलब सहाबा का कम अदब और फाजिल बरेलवी के खानदान का ज्यादा अदब। अब कहते क्या हजरत, वो हुजूर का लफ्ज का मादा क्या, अरे ये ग्रामर की बातें तू अपने पास में रख। लफ्ज हुजूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में खास है बेशक। आपने भी पढ़ा होगा, तमाम बलियों ने तमाम बड़ी बड़ी किताबों में उन्होंने अल्लाह के रसूल के लिए ये लफ्ज लिखा है। जी, और आदमी जब आम मुसलमान भी लफ्ज हुजूर सुनता है तो उसका जहन, उसका ख्याल गुंबद खजा की तरफ जाता है। बेशक बेशक। अच्छा इसमें देखो इनकी बरेलियों की हालत देखो कि हुजूर जिसको चाहेंगे कहेंगे, अजहरी मियां को मुफ्तियां को, लेकिन आला हजरत किसी को नहीं कहेंगे बरेली वालों के अलावा। यानी फाजिल बरेलवी की कितनी अजमत इनके दिलों में है कि आला हजरत निजामुद्दीन औलिया को नहीं कहते, आला हजरत गरीब नवाज को नहीं कहते, आला हजरत इमाम हुसैन को भी नहीं कहते, आला हजरत इमाम हसन को नहीं कहते, आला हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं कहते, और हुजूर तो जिसको चाहेंगे कहेंगे। यानी हुजूर का लफ्ज अल्लाह के रसूल के साथ खास है, वो तो जिसको चाहेंगे कहेंगे, और आला हजरत सिर्फ उन्हीं के लिए खास है, बरेली खास है। वो तो कुछ मानने वाले अशरफी सिलसिले के आला हजरत अशरफी मियां को कहते हैं, कुछ अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह को, वरना आमतौर से तो ये बस फाजिल बरेलवी को ही कहना चाहते हैं कि आला हजरत सिर्फ उन्हीं की डिग्री है बस। बल्कि एक बार मैंने किताब है मेरे पास में, वो मुफ्ती महमूद अहमद रिफाकती ने लिखी है, ये मुजफ्फरपुर के थे, मुफ्ती रिफाकत हुसैन साहब के लड़के हैं, मेरे पास है घर में ही है। तो उन्होंने आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां को कह दिया, उनके परदादा पीर होते थे, वो दादा पीर होते थे वो। ये कानपुर की बात है, कानपुर के बाद कदौर एक जगह में उनके वालिद के मुरीद थे, तो उन्होंने तकरीर के दौरान कह दिया आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां। तो एक आदमी खड़ा हो गया कि महफिल में, ये आपने आला हजरत क्यों कहा उनको, तो उन्होंने दलील दी, भाई कह सकते हैं, फाजिल बरेलवी ने भी अल्लामा अब्दुल कादिर को कहा है, अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह को, तो वो दलील नहीं माना, कहा कि नहीं नहीं आला हजरत तो सिर्फ बरेली वाले है, कोई दूसरा नहीं है। वो मुरीद का कह रहा कि जो किसी भी सिलसिले का मुरीद था कि नहीं नहीं आला हजरत तो सिर्फ बरेली वाले हैं, वो कोई नहीं। तो वो समझाते रहे, माना नहीं। तो फिर उसने बाकायदा मुखालिफत में, कुछ बरकाती सिलसिले के मुरीद थे उनको मुखालिफ यानी पब्लिक से इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके एक जलसा कराया, इसी वजह से कि इसने आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां को क्यों कहा। और उसमें मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी आए तकरीर करने, वो किताब है मेरे पास घर में ही मौजूद है, और खतीब मशरिक निजामी साहब आए, दोनों ने रद्द किया कि तूने आला हजरत बरेली वालों के अलावा किछोछे वालों को क्यों किया जी। और आज तक हिंदुस्तान में एक भी जलसा इस बात के लिए नहीं हुआ कि लफ्ज हुजूर सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए बोला जाए और कहा जाए, और ये अल्लाह के रसूल के साथ में खास है, ये फिक्र बरेली वालों को नहीं है। आला हजरत के कह दिया था, कछोछे वालों को तो इन्होंने जलसा भी कर लिया था जी जी।
ये कदौरा कानपुर के पास की बात है ना, मेरे पास किताब मौजूद है यहीं पर। जी जी। यानी आला हज़रत की कितनी फिक्र इनके दिलों में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लफ्ज खास है, हुजूर का लफ्ज अल्लाह के रसूल के लिए बोला जाता है, वो जिसको चाहेंगे कहेंगे। इनकी नजर में बताई लफ्ज हुजूर की कोई अहमियत ही नहीं। जी जी। क्या ख्याल है साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये भी बताया, देखो हाफिज मिल्लत जब हम कहते हैं मखसूस लफ्ज है, तो वो मुराद होते हैं क्या कहते हैं, मुबारकपुर वाले। मुजाहिद दोहरा कहेंगे मुराद कछोटे वाले होते हैं। अगर जो है कि मुहद्दिस कभी कहेंगे तो हजरत मौलाना रियाल मुस्तफा साहब मुराद होते हैं। अब शेखुल इस्लाम हम कहेंगे तो शेखुल इस्लाम से मुराद 4 शेखुल इस्लाम हुए हैं, 2 बरेलवियों में 2 देवबंदियों में। अगर देवबंद वाला शेखुल इस्लाम कहेगा तो मुराद शेखुल अरबी वल अजम हुसैन अहमद मदनी साहब होंगे। आज के दौर में अगर शेखुल इस्लाम कोई कहे तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब होंगे। ये इधर से हजरत अल्लामा ताहिरुल काजी साहब, उनको भी लोग शेखुल इस्लाम कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मदनी साहब को भी कहते हैं। 2 बरेलवियों में, दो देवबंद वालों में। अच्छा, एक न्यूट्रल हो गए, वो अल्लामा ताहिरुल काजी को तो बरेलवी काफिर मानते हैं, तो काफिर है। उन्होंने तो साफ कह दिया, कहने लेके अहले सुन्नत वल जमात से मुराद मसलक आला हजरत नहीं है, बल्कि इससे मुराद जो है वो सहाबा की जमात है। उन्होंने साफ कहा अहले सुन्नत वल जमात हदीस शरीफ से साबित किया, सहाबा के नक्शे कदम पर है। उन्होंने तो साफ खुल के कहा, नहीं कहा कि हुजूर ने फरमा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरह मैं मेरे सहाबा होंगे, कहा यही अहले सुन्नत वल जमात है। कोई चौथा इसके अलावा दूसरा लफ्ज लाएगा तो वो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो कौम को गुमराह कर रहा है, जी साफ साफ बोला साहब। तो अल्लामा ताहिर काजी तो उनके नजदीक काफिर है, बरेलियों के नजदीक। तो वो तो शेखुल इस्लाम न्यूट्रल फिरके में आ गया, यानी न देवबंदी में न बरेलवी में। जी जी। अच्छा, उनका कारनामा बहुत बड़ा है हजरत अल्लामा ताहिर काजी साहब का। नहीं कारनामा है उनका, ये बात है कि और इल्मी शख्सियत के मालिक हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें शक नहीं, दलाइल का अंबार लगा देते हैं जब तकरीर करते हैं तो। अच्छा, वो हंसाते नहीं है ना टाइम पास, ना बहुत संजीदगी से और बात की गहराई तक, अमीक तक जाने की कोशिश करते हैं वो। अरे पूरी सही फरमा रहा आप, बहुत गहराई से बात को ले आते हैं। अच्छा, दूसरे उनकी तकरीर में बकसरत उलमा रहते हैं। अगर वो हवाई फायरिंग करते तो उलमा वहीं हाथ पकड़ लेते उनका। नहीं, और कभी भी देखो उलमाए देवबंद पे कभी उन्होंने तबर्राबाजी, तानो तशनी कभी नहीं की, और बल्कि उन्हें रहमतुल्लाह अलैह कह के उन्होंने उनको बयान किया अपनी तकरीरों में। नहीं करते हैं वो, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को ही मानते होंगे। हाँ, वो तो उलमा देवबंद को मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो तो सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंद बरेली अहले हदीस को ही मानते हैं मुसलमान। जी, मैं भी मुसलमान ही मानता हूँ अहले हदीस को, इसलिए कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नजदीक तो ये बरेलवी भी मुसलमान है और ये अहले हदीस भी। बस ठीक है, मसाइल को लेकर इख्तिलाफ है, फिका को लेकर इख्तिलाफ है, राय को लेकर इख्तिलाफ है, वो बात अपनी जगह है। लेकिन खारिजी इस्लाम तो नहीं है ना। अगर खारिजी इस्लाम होता तो पता नहीं कितनी बेटियां हमारी इनके घरों में हैं और इनकी बेटियां हमारे घरों में हैं। अरे देवबंदियों की लाखों बेटियां बरेलियों घरों में, बरेलियों की लाखों बेटियां देवबंदियों घरों में। और वक्त मिला तो मस्जिदों में बाकायदा नमाजी बाजमात हम लोग पढ़ लेते हैं, हमें कोई वो नहीं होता, तरद्दुद नहीं होता पढ़ने में। लाखों बरेलियों की लड़कियां देवबंदियों के घरों में, और लाखों देवबंदियों की बरेलियों के घरों में। फिर तो इसका मतलब सबकी यहाँ, फिर तो तुम्हारे इनकी बरेलियों के साथ निकाह नहीं हो रहा, किसी निकाह नहीं हुआ, सबके यहाँ सब जो है गुनाह कबीरा हो रहा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अच्छा, इसके अलावा एक खास बात और, मैंने अभी एक मौलवी से पूछा तो फिर शमसी साहब से, मैं क्या अगर वहाबी निकाह पढ़ा हो तो फाजिल बरेलवी लिखा, निकाह तो गैर मुस्लिम भी पढ़ा सकता है, तो वहाँ तो बरेली बच जाएगा। मैं क्या अच्छा बताओ कि गवाह के लिए, कहना नहीं गवाह तो अगर वहाबी बनेगा तो निकाह नहीं होगा। तो मैं क्या यार फिर तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों के किसी की निकाह नहीं हो रहा है। तो कहने लगा नहीं वो निकाह के बाद ये भी कहलवाया जाता है, जो 2 गवाह मुतय्यन होते हैं कि जितने भी हाज़रीन गवाह रहे, तो कहना है कि अगर हाज़रीन सुन्नी होंगे तो ये तो हवाई फायरिंग है ना, वहाँ सुन्नी होंगे। तो मैं कि वहाँ तो मसले की हालत को मानते नहीं है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में फिर सुन्नी कैसे होंगे वहाँ पर। तो फिर ये किसी और तरह से सुन्नी बनाएंगे। अरे भाई तुम कैसे बगल देके सुन्नी बना रहा हूँ, वहाँ तो सब वही लोग हैं जिनको तुम वहाबी देवबंदी कहते हो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। तो तुम्हारे फतवे से, फताव रज़िया के हिसाब से तो किसी का ही निकाह नहीं हो रहा मक्का शरीफ मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ और दूसरी भी अरब कंट्रियां हैं, वहाँ भी किसी का निकाह नहीं हो रहा, किसी का ही निकाह नहीं हो रहा। ये जबरदस्ती सुन्नी बना देंगे कि कुछ तो होंगे। अरे ये होंगे, ये तो शक वाली बात है, होंगे। देखो कभी मसलक उलमाए देवबंद वालों ने ये नहीं कहा, ना ये लिखा कि जो इंसान मसलक उलमाए देवबंद को ना माने वो काफिर हो, मुर्तद हो। कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि भाई कुरान और हदीस का सही तर्जुमान मसलक उलमाए देवबंद है, उलमाए देवबंद का मसलक है, तर्जुमान बताया अपने आप को, बिल्कुल वजाहत करने वाला। मैंने आज तक देवबंद वालों से थानवी साहब को मनवाते हुए नहीं सुना कि उनको ना, तो उनकी बात ही नहीं मनवाते, नहीं, उनका नाम भी नहीं लेते, कभी कभार लेते हो तो
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے تقویۃ الایمان ہر گھر میں پڑھو یا صراط مستقیم پڑھو. آج تک پورے انڈیا میں نے ایک بھی مسجد میں نہیں دیکھا تقویۃ الایمان صراط مستقیم کہیں بھی نہیں دیکھا. نہ بہشتی زیور ہے نہ تقویۃ الایمان ہے اور نہ بہشتی زیور تو خیر گھروں میں مل جاتا ہے لیکن تقویۃ الایمان تو ملتی نہیں عام طور سے. نہیں وہ تو کسی گھر میں ملتی ہے کہیں. جیسے آپ کے بنگلور میں اگر میں چیلنج کر دوں نا بریلویوں کو کہ اتنی بڑی آبادی ہے بنگلور، قریب 5 لاکھ یا 6 لاکھ تو مسلمان ہوں گے یا زیادہ ہوں، تو میں اگر بریلویوں کہہ دوں 6 لاکھ کی آبادی دیوبندیوں کی وہاں ہوگی کم بیش بنگلور میں، اگر تو 6 لاکھ کی آبادی میں 600 نہیں صرف 200 کتابیں حفظ الایمان اور صراط مستقیم کی لیا تو میں تیرا غلام بن جاؤں گا. نہیں نکلیں گے حضرت. پھر یہ سارے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں صراط مستقیم ایسا لکھا. ارے بھائی ٹھیک ہے، کسی نے اگر غلط لکھ دیا تو وہ جانے قبر میں جواب دے گا، اس پر کوئی عقیدت تھوڑی ہے صاحب. اچھا مسجدوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اکثر مسجدوں میں فجر کے بعد آپ بھی بیٹھتے ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی کبھی کبھی بیٹھتے ہیں، یا عصر کے بعد بیٹھ گئے، جا کے مغرب سے پہلے جا کے بیٹھ گئے. آپ مسجد میں دیکھ لیجئے جتنی بھی دیوبندی مسلک کی مسجدیں ہیں وہاں 5 منٹ کا مدرسہ اور فضائل اعمال مشکل سے 2 نسخے ملیں گے بس. اس کے علاوہ فقط قرآن کریم، منزل، سورہ یاسین، بس فقط قرآن ہے. آؤ بیٹھو قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اپنی نفل نمازیں پڑھو اور اپنے گھر کو جاؤ، بس عام طور سے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھو تبلیغ جماعت والوں سے تو علماء دیوبند کو بھی اختلاف ہے، تو خیر 2 شاخیں ہو گئی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی ہضم نہیں ہوتی. ایسے قرآن کی تفسیر یہ لوگ نہیں سنتے عام طور سے. نہیں سنتے ہیں حضرت، ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہوں بیٹھتے ہیں تفسیر میں. دیکھیں آپ کے یہاں بنگلور میں بیٹھ جاتے ہیں، بھوپال میں نہیں بیٹھتے، بھوپال میں نہیں سنتے. ہمارے استاد کرتے نا مفتی رئیس. اچھا رہی بات اس کی، دیکھیے فضائل اعمال کی جو کتاب ہے، جو اکثر یہ صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں تھوڑی دیر اس کی چند حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، زیادہ نہیں. اس کی تو 5 منٹ گھڑی میں دیکھ لیجیے، 5 منٹ سے اوپر نہیں جاتا معاملہ. 5 منٹ میکس ٹو میکس 5 منٹ 2-3 حدیثیں بیان کی، اور وہ بھی حدیثوں کو پہلے ہی نوٹ کر لیتا بھائی کہاں سے مطلب حدیثیں بیان کرنی ہے. ایسا نہیں کہ اول تاخیر اس کی جو ہے تلاوت ہو رہی ہے، وہ بھی اس لیے کہ تاکہ انسان کا دل جو ہے نا عمل کی طرف رجوع ہو جائے. بھائی اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی دیکھو اس مٹھائی کا ذائقہ ایسا ہے، زبان پہ رکھتے ہی گھل جاتی ہے، منہ میٹھا ہو جاتا ہے، کھانے کے بعد گھنٹوں تک مزہ آتا ہے، تو اس کی مٹھائی کی تعریفیں سن کر ہی نا انسان مٹھائی کھانے کو دل کرے گا اس کا. صحیح بات. یا کوئی چیز اگر ہو میں اس کی اوصاف بیان کروں کہ دیکھو یہ موبائل ایسا ہے، اس کے کیمرے اتنے اچھے ہیں، بیٹری اتنی اچھی ہے، اس کا پروسیسر، اس کا مدر بورڈ، اس کا ڈسپلے، اس کی قیمت بھی اتنی کم ہے، تو ہر کوئی لینے کی سوچے گا اس کے اوصاف اور اس کی خوبیوں کو دیکھ کر. تو اسی طریقے سے اعمال کے فضائل اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ انسان کے اندر میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. مثال کے طور پہ مسواک ہے. ہاں مثال کے طور پہ مسواک ہے. اب لوگ کو مسواک کی عام طور سے عادت نہیں ہے، ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں، لیکن جب مسواک کے فضائل سن لے گا انسان تو یقیناً 10 روپے کی 20 روپے کی مسواک خریدے گا. عمل کا جذبہ پیدا ہو. ہاں. یا مثال کے طور پہ ٹوپی کی وہ ہے بھائی سر کو ڈھانکنا، تو تھوڑی بہت سب جگہ ہی ہوئی ہے. تھوڑی بہت تو سب جگہ. دیکھیے حضرت ہم لوگ جو ہے شروع میں جب یہ دعوت اسلامی بنی تھی نا، ان میں کمی نہیں تھی. ہاں بڑی اچھی جماعت، میں بھی ان کے ساتھ میں رہا. میں نے خود سب سے پہلے صفی پور میں نہیں بلایا جماعت کو جی، اور سب سے پہلے للت پور میں نہیں بلوایا، اور وہاں پر سب سے پہلے اجتماع میں نہیں کروایا تھا للت پور میں، آج سے 15 سال پہلے قریب. الحمدللہ اس زمانے میں کیا ہے، ان میں ہم نے کوئی کمی ایسی نہیں دیکھی، بڑا اچھا خلوص تھا ان کے دلوں میں. لیکن جیسے یہ بیل گاڑی سے ہوائی جہاز ملا نا ان کو، تو پھر ان کے دماغ آؤٹ ہو گیا کہ ارے اب تو ہم دنیا میں مشہور ہو گئے، دنیا میں ہماری جڑیں مضبوط ہو گئی. جب سے ان کے دماغ بہت آؤٹ ہو گئے، پھر یہ عالموں سے کٹنے لگے. پہلے تو عالموں کو بہت قریب رکھتے تھے لوگ، جی، پھر دھیرے دھیرے عالموں کو الگ کرنے لگے، پھر واپس عالموں کو جوڑنے لگے پیسہ دے کے. دیکھا کہ اب ہماری گاڑی پٹری سے اتر سکتی ہے، عالموں کو نہیں لیں گے، تو پھر یہ 50 ہزار روپے دے کے عالموں کو خریدنے لگے. اب یہ کر رہے ہیں، یہ ایک دلال کو 50 ہزار روپے، ریاض قاضی کے ماننے والے ایک دلال کو 50 ہزار روپے دینا مہینے کا. اچھا، اور ایک بات میں آپ کی بات کو روکتے ہوئے کہہ رہا ہوں حضرت، آج تک ان لوگوں میں انہوں نے بھی بہشتی زیور لکھا. ہاں انہوں نے سنی بہشتی زیور مفتی خلیل احمد صاحب نے لکھا، لیکن اس میں اتنی زیادہ غلطیاں کر دی، اتنی اغلاط سے بھرا ہوا ہے، اللہ میری توبہ، کہ جس کی انتہا نہیں. اور فضائل اعمال جیسی کتاب تو 2 جلدوں میں موجود ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے. اس کو اگر اس کے 10 حصے بنا دیے جائیں دونوں جلدوں کے، ایک حصہ بھی ان کے یہاں آج تک کسی نے لکھا نہیں ہے. چلو بھائی تم فضائل اعمال کم از کم نہیں، وہ انہوں نے بھی سنی فضائل اعمال لکھوایا، بعد میں نقل کروا دی.
अच्छा अच्छा अच्छा। नकल करवा दी जैसे सुन्नी फजाइल अमाल, और वो बहिश्ती देवर की नकल करवाई, सुन्नी बहिश्ती देवर के नाम से हाँ मुफ्ती हाँ खलील हाँ। अहमद साहब ने लिखा। जी जी जी। अच्छा, खलील नाम के हैं 4 लोग कमबेश। अच्छा। एक तो मुफ्ती खलील अहमद सहारनपुरी हैं, मुफ्ती खलील अहमद अम्बेडवी हैं, एक मुफ्ती खलील अहमद जिन्होंने सुन्नी बहिश्ती देवर लिखा है, जी एक जी मुफ्ती खलील अहमद साहब थे बिजनौर के, वो बदायूं के नाम से ही मशहूर है, उनका इंतकाल बदायूं नहीं हुआ है। तो वो जी। बहुत कट्टर बरेलवी थे, इतने कट्टर के जब वो पाकिस्तान में गए थे तो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिले थे, देवबंदी रिश्तेदारों से, अल्लाह। यानी इतने खतरनाक बरेलवी थे। लेकिन बाद में जब कुछ समझ में आया कि यार हम बिला वजह काफिर कहते देवबंद वालों को, कुछ तहकीक सामने आई तो उन्होंने फैसला किया साहब मैं देवबंद वालों को काफिर नहीं कहूंगा। तो फिर बरेलियों में खलबली मची, इनके बारे में 3 मीटिंगें की फिर बरेलियों ने कि देखो मान जाओ सबको काफिर कहो देवबंद वालों को, लेकिन ये नहीं माने। एक मीटिंग में आए थे ये मुशाहिद रजा साहब थे, और वो काजी शमसुद्दीन जौनपुरी साहब थे, काजी शरीयत लिखी। फिर तीसरी मीटिंग में गए थे ये अजहरी मियाँ, ज़ियाउल मुस्तफा साहब और मुशाहिद रजा साहब। ये लास्ट मीटिंग बदायूं में हुई थी काजी मस्जिद में, कि देखो तुम देवबंद वालों को काफिर कहोगे कि नहीं। 3 मीटिंग की इनके बारे में, समझाया कि देखो काफिर कहो सब देवबंद वालों को, जैसे मक्का शरीफ वालों को भी, मदीना शरीफ वालों को भी, जामिया अज़हर वालों को भी, जामिया अज़हर वाले भी वही देवबंदी हैं, और नदवे वालों को भी, जामिया अज़हर भी तो वही सब पहले खड़े होते, ना अंगूठा चूमते ना कुछ। जी जी जी। तो तीसरी मीटिंग जब बदायूं में हुई काजी में कि देखो काफिर कहो, इसमें अज़हरी मियाँ खास थे, अज़हरी मियाँ, मुशाहिद साहब, ज़ियाउल मुस्तफा साहब, ये तीसरी मीटिंग थी लास्ट फाइनल मीटिंग। कहा कि नहीं मैं काफिर नहीं कहूँगा देवबंद वालों को, कहा कि नहीं कहोगे, नहीं कहूंगा। तो बस तो फिर इनका बरेलियों ने बाइकाट किया, पर्चे छपवाए कि खलील अहमद गुमराह हो गया है, सुन्नी यानी मुसलमान नहीं रहा। तो फिर वो उन्हें गुस्सा आ गया कि जब हम जिस जमात में रहते थे बरेलवी तबके में यही हमें नहीं मान रहा, तो अब हम कहाँ जाएं? भाई पार्टी तो ज्वाइन करना पड़ेगी, बीजेपी करो या कांग्रेस करो, यही 2 बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में, या तो देवबंद या बरेलवी। अब अहले हदीस मौजूद ही हो, जैसे जैसे सपा बसपा, इन्हें कौन ज्वाइन करेगा? हाँ सही बात। तो फिर वो बस बड़ी पार्टी के थे, यानी कि बरेली जमात में उनको बताया जाता था, बरेली जमात में इल्म की कोठरी माना जाता था। यहाँ तक मैंने सुना एक बड़े मुफ्ती से, बड़े मुफ्ती ने मुझे बताया था, जिसको मैंने बुलाया था रामपुर में तकरीर करने एक गाँव में, कि जब महाराजा शरीफ मुफ्ती खलील साहब आते थे तो महाराजा के अकाबिर ये कहते थे कि मुफ्ती वक्त आ रहा है, कुतुब वक्त आ रहा है। महाराजा शरीफ से खिलाफत थी, जहाँ से फाजिल बरेली को खिलाफत थी वहीं से उनको खिलाफत थी, हज़रत ताजुल उलमा ने खिलाफत दी थी। जी जी। तो फिर जब बरेली ने किया कि नहीं अब मुसलमान नहीं हो, तुम गुमराह हो चुके हो, देवबंद वालों को काफी नहीं किया, तो फिर इन्हें गुस्सा आया कि अब क्या करें यार। तो फिर इन्होंने सीधा देवबंद का रुख कर लिया। जी। हमारे उस्ताद ने खुद बताया कि जब देवबंद आए तो सिर्फ 10 मिनट तकरीर की थी शायद, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह कुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। इशारों में उन्होंने समझाया। तो मुझे बताया था कि देवबंद में इतनी खुशी मनाई गई कि शायद छुट्टी कर दी थी जालूम देवबंद की खुशी में, शायद छुट्टी हो गई थी, या जश्न मनाया कि दुनिया का बरेलियों का सबसे बड़ा आलिम आज हमारे अंदर आ रहा है, कि बरेलियों की हरकतों की इजाजत है कि बरेली उनसे कह रहे काफिर कहो सबको, यानी देवबंद वालों को, नदवा वालों को, अरब वालों को, मक्का शरीफ वालों को, मदीना शरीफ वालों को। वो तो मुसलमान मानते नहीं, मक्का शरीफ वालों के लोग इमामों को ही नहीं मानते, तो वहाँ के लोगों को क्या मानेंगे? जी जी। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो फिर देवबंद गए, वहाँ जाके तकरीर की कि मैं आपके साथ हूँ। इन्होंने मुझे इस वजह से बाइकाट कर दिया कि मैं आप लोगों को काफिर नहीं कह रहा था। तो फिर वो देवबंद मालूम ही रहे, फिर उन्होंने इंकिशाफ हक किताब लिख दी बाद में। इंकिशाफ का कहाँ, सही बात है। तो वो तो मुफ्ती खलील साहब दुनिया के बरेलियों के सबसे बड़े आलिमों में थे अपने वक्त के, दुनिया के। जी जी। लेकिन वो समझ गए कि यार ऐसे काफिर कहना सही नहीं। पहले तो कहते थे काफिर देवबंद वालों को, बाद में फिर हजरत ये तो बात सच्ची है और सच्चाई भी है और हक भी है कि उलमाए देवबंद ने जो कारनामे उलूम में जो अंजाम दिए हैं, अरे साहब तो कयामत तक के लिए रोशन है, कयामत तक के लिए हुज्जत भी है, खलील साहब को मालूम नहीं पहले रोशन भी है। अकाबिरीन देवबंद ने जो कुरान करीम की जो तफसीरी लिखी हैं और आज भी उस पर काम जारी है। अब देखो ना, अब ये मुफ्ती शफी साहब ने तफसीर लिखी मारिफुल कुरान, हाँ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हवाई जहाज में तफसीर लिखी, आसान तर्जुमा कुरान पूरी हवाई जहाज में लिखी, पूरी हवाई जहाज में लिखी, बेशक वो आसान तर्जुमा कुरान ये जी 2 जिल्दों में 2 जिल्दों में। अच्छा, इसके अलावा तौज़ीहुल बयान वो अलग लिखी है। जी जी जी। और एक और कौन है बड़े बड़े मुफस्सिर, वो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की भी तफसीर है गालिबन। हाँ हाँ जी 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 जी। और जाने कितने उलमा ने तफसीर लिखी है देवबंद वालों ने, तो साहब 1-2 ने नहीं, बहुत सारे उलमा लिखी, बहुत सारों ने लिखी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तफसीरें हैं कि बस मतलब कयामत तक के लिए ये समझ लीजिए कि अरे हाँ, उनका याद आ गया, मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब,
हाँ, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब जी, उनकी भी मारिफुल कुरान है, मुफ्ती शफी साहब की मारिफुल कुरान, हाँ, दोनों ने हमारे एक ही नाम से तफसीर लिखी है। हाँ, एक ही नाम से लिखा तो मारिफुल कुरान जी। बताइए कैसे कैसे मुफस्सिर देवबंद वालों में हुए हैं साहब। और इनके यहाँ क्या है, अहमद यार खां साहब ने लिखी थी तफसीर नईमी, तो उसमें हाँ, भी जाने तफसीर क्या नईमी, क्या हाँ, लिखा है। अब हाँ, उनकी तफसीर का हाल मैं बताऊं आपको, आप जी समझ जी जाओगे कि कितनी बड़ी जबरदस्त तफसीर है। वो जी, जहाँ मैं इमामत करता था गुजरात में, तो एक हमारे मुरीद है, वो भी इंग्लैंड में है, जनाब अनीस अहमद साहब पटेल, गुजरात में है, प्रिंस्टन में। तो वो समझदार आदमी, आम आदमी है लेकिन समझदार, शरीफ, रोशन दिमाग, फ्रेश माइंड। तो वो आशीर्वाद में तफसीर पढ़ देते थे, एक इमाम साहब वहाँ पर तफसीर नईमी। तो वो मेरे खास तौर में से कि हजरत बताइए, इसमें मुफ्ती अहमद यार खान साहब लिख रहे हैं कि इस आयत के ऊपर आर्य समाज ये इतराज करते हैं, और इस आयत पर ये इतराज करते हैं, उस पर ये आर्य समाज और फलाना समाज, ईसाई लोग। तो वो मुझसे कह रहा, हजरत अगर आर्य समाज इतना ही कुरान को समझते तो ईमान नहीं ले आते। ईमान नहीं ले आते, क्या सही बात है। यानी एक आम आदमी समझ गया कि यार आर्य समाज इतना कहाँ कुरान की एक एक आयत पे इतराज करेंगे, जो तफसीर नईमी में लिखा है कि आर्य समाज इतराज करते हैं, ये जवाब है, वो इतराज, ये इतना ही अगर कुरान को समझते हो, जानकारी होती तो ईमान नहीं ले आते। तो वो एक आम आदमी समझ गया कि मन घड़त कितनी बातें इसमें लिख रखी हैं। और खुद जो मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संबली रहमतुल्लाह अलैह बरेलियों के सबसे बड़े मुनाजिर थे, यानी शेर बेशा अहले सुन्नत का लक़ब समझ लो उनको, शेर बेशा अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संबली, सबसे बड़े मुनाजिरों में बरेलियों के। उनके बेटे बरेली में फाजिल बरेली के मदरसे में पढ़ाते थे, मंजर इस्लाम में। उनका नाम था मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब। तो उनके एक शागिर्द ने मुझे बात बताई कि वो ये कहते थे कि तफसीर नईमी में जाने क्या क्या लिख के चलेगा, वो खुद नहीं मानते थे कि यार क्या क्या लिख दिया इसमें। गलतियां तो बहुत है तफसीर नईमी में, बेइंतहा गलतियां हैं। अरे वो जो मैंने बताया ना, मुफ्ती मुनाजिर साहब जो मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब के लड़के थे, वो तक बता गए कि जाने क्या क्या लिख दिया इन्होंने। वो पढ़ाते वहीं थे, मंजर इस्लाम में ही पढ़ाते थे, वो गुरसाहिबगंज में ही पढ़ाया। तो लेकिन ये लोग बताते नहीं कि हमारी बदनामी हो जाएगी। तो उसमें यह भी लिखा है कि जो दुरूद इब्राहिमी नमाज के अलावा पढ़ेगा तो उसको गुनाह तक लिखा उन्होंने, नमाज के अलावा पढ़ना गुनाह लिखा उन्होंने। कहते हैं कि इसमें सलाम नहीं है, खाली दुरूद है, और अल्लाह ने फरमाया कि सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, नबी पर सलातु सलाम दे दो। तो ऐसा इस्तिदलाल तो 14 साल में आज तक किसी भी आलिम ने नहीं किया। बताओ, दुरूद इब्राहिम पढ़ने को मना लिख दिया, गुनाह लिख दिया कि ये नाजायज, ऐसे कुछ लिखा है नाजायज है नमाज के अलावा पढ़ना, जबकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दुरूद इब्राहिमी के बारे में। दुरूद इब्राहिमी तमाम दुरूदों का सरदार है। हाँ, उसको मना लिखा है कि नमाज में पढ़ो, नमाज के अलावा मत पढ़ो, बल्कि नाजायज मना लिखा। जितने भी दरूद पाक हैं उनका सरदार है दुरूद इब्राहिमी। अब जो एक ले दे के तफसीर लिखी उन्होंने, वो उसमें भी ऐसी ऐसी बातें हैं कि बताइए, खुद बरेलवी नहीं मान रहे, ऐसी बताओ। और देवबंद वालों ने कैसी कैसी तफसीर लिखी है। और शरह, बुखारी शरीफ की शरह अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह, और अबू दाऊद शरीफ की शरह, क्या कहते हैं, औजजुल मसालिक शरह मुअत्ता इमाम मालिक, 27 जिल्दों में शेख ज़करिया साहब ने लिखी है। और एक मुल्हिम के नाम से कौन सी, फतहुल मुल्हिम शरह सही मुस्लिम, हाँ वो हजरत किसी और ने लिखी है, ध्यान नहीं आ रहा। यानी बड़ी बड़ी शुरुआत लिखी है साहब हदीस शरीफ की देवबंद वालों ने। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से ऐसी नुमाया खिदमत अंजाम है, और अल्लाह ताला ने उसे ऐसा महफूज किया और ऐसा बुलंद किया कि क़यामत तक के लिए जो उलूम और फ़ुनून से जो वाबस्तगी होगी, जो तालिब इल्म होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने जामे निज़ामिया हैदराबाद को सुना होगा, ये जामे उल देवबंद बरेलवी दोनों को जमा करने वाला इदारा है। जी जी जी, ये किसी को काफिर नहीं कहते, दोनों को मुसलमान मानते हैं। हाँ, अब यहीं का ये नक्शबंदी, अहमद नक्शबंदी, ये दौलत कमाने के लिए बरेलवी बन गया है। वो देवबंद है, वो सुलकुल्ली है, बरेलवी वाले उसे मुसलमान नहीं मानते, सुन्नी। मुहद्दिस कबीर ने तो ये कहा कि पाली वालों तुमने इसे क्यों बुला लिया, हमसे तो मशवरा ले लेते। वो खट्टर कुट्टा बरेलवी बना हुआ पैसा कमाने के लिए। अहमद नक्शबंदी है ना जो, वो हंसी मजाक करता है हजरत, वो तो एक तरीके का जोकर है, जोकर जिसका जोकर है। जामे निजामिया से फारिग है, जहाँ के लोग सबको मानते हैं मुसलमान। अच्छा, मुफ्ती तस्कीर साहब जो अभी अमेरिका गए थे ना कहीं पर, या मुफ्ती जुल्फकार साहब से मिले थे, तो कुछ लोगों ने कह दिया कि देवबंदी हो गए। तो उन्होंने बयान दिया कि नहीं, हम देवबंदी नहीं हुए ना उन्होंने कहा कि देवबंदी बरेलवी को मतलब ये बताया कि हम तो जो तजरिया बता दिया कि दोनों में जो होता है मान लेते हैं, सही ना, हमारा ये मसलक देवबंद है ना बरेली, मतलब जामे मसलक, क्योंकि वो हजरत हाजी इमदाद साहब के खलीफा ने कायम किया था, वो जामे निज़ामिया हैदराबाद अनवारुल्लाह साहब ने। तो वो ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि अमेरिका में बरेलवी लोगों को लोग समझते हैं ना कि बरेलवी आलिम तो नहीं है, चौंकते हैं बरेलवी के नाम से।
यानी घबराते हैं कहीं ये बरेलवी आलिम तो नहीं आ गया यहाँ पर, ऐसी कुछ शायद वाकया बता रहे थे अमेरिका का। यानी लोग इतने डरते हैं कि यार बरेलवी आलिम तो नहीं आए, अभी इमाम हरम को काफिर कहेगा, मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर कहेगा, और ये बताएंगे जिसने नमाजें पढ़ी हैं इमाम हरम के पीछे सब दोहरा और तुम्हारा निकाह भी टूट गया। इनका एक ये भी मसला है कि अगर तुमने उनको मुसलमान जान के पढ़ी तो काफिर हो गए। अब बताओ कोई मुसलमान जान के नमाज नहीं पढ़ेगा तो काफिर जान के बस पीछे पड़ेगा इमाम हरम के पीछे। मन शक्का फी कुफरिही व अज़ाबी फ़क़द कफ़र, किस तरीके से वो इस तरीके से लिखा है। अब बताओ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं पैदा होंगे, ये लोग तो क्या मालूम उनसे क्या मालूम क्या दरखास्त करने लगे आप मसले के हालात को मानिए साहब, क्या मालूम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जाके ये न कहने लगे मुफ्ती शमशाद और ये जमदाशाही वाले मुफ्ती के साहब आप मसले के हालात के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। ऐसा तो इनकी हिम्मत ही नहीं होगी बात करने की हिम्मत नहीं होगी उनसे तो साहब। जी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास में अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती रोब होगा तो उनसे तो ये क्या बात करेंगे मौलवी लोग, हिम्मत ही नहीं होगी साहब। मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत ही नहीं होगी कुछ बात कर ले उनके सामने। क्या ख्याल है साहब। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वहाँ तो अदब ही करना पड़ेगा, जो फरमाएंगे वही मानना पड़ेगा। तो ये तो मसले के हालात तो मानेंगे नहीं, वो तो मैं तो कह रहा हूँ किसी भी मसलब को नहीं मानेंगे। मैंने किसी भी मसलब को नहीं मानेगा वो, क्योंकि वो तो मुज्तहिद मुतलक होंगे। हाँ मुज्तहिद सबके इमाम होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अब मैं यही तो कहता हूँ वो बरेली में पैदा होंगे या मुबारकपुर में या पीलीभीत में, पैदा तो वहीं होंगे ना जिन लोगों को तो मुसलमान नहीं माने अरब वालों को। हाँ पैदा तो वहीं होंगे, बशारतें तो वहीं की हैं, वहीं की हैं बशारतें। अब तुम तो उन्हें सुन्नी बना दो, वो वहाँ वालों को सुन्नी बना दोगे कि साहब वो सुन्नी खानदान में होंगे तो तुम अपनी तरफ से ही सुन्नी बना रहे हो, अपनी तरफ से ही वहां भी बना रहे हो। अरे जब तुम्हारे वो मसलक को फॉलो ही नहीं कर रहे तो तुम्हारे साथ तो सुन्नी कहाँ से हो गए वो तो बेशक सुन्नी है, सब सुन्नी है, जहाँ पर वो पैदा होंगे वो भी सुन्नी है। वो तो असली सैयदों में असली सैयद खानदान है, जहाँ पैदा होंगे सबके सब सुन्नी है पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ के। लेकिन इनके फतवे से तो जामे अजहर वाले और मक्के शरीफ वाले सबके सब वहाबी हैं साहब। हाँ सब वहाबी हैं। ये जामे अजहर वालों को मजबूरन सुन्नी बनाते हैं कि इनको अभी अपना लेवल लगाना है ना जामे अजहरी, तो इनको 50,000 रुपए तकरीर का मिल जाएगा जामे अजहर में पढ़ने के बाद। पाकिस्तान के एक वो थे मौलाना समीउल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। हाँ समझ गया। और उनके मदरसे में जो तालिब इल्म थे उसमें से 10 तालिब इल्म ऐसे थे जिनके नाम मैं शायद ना लूँ तो बेहतर है। अच्छा। और उन्होंने ही पूरे तालिबान को पैदा किया, पूरे अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत खड़ी की। बताइए आप। तो तारीख मौजूद है। ये सब किसके शागिर थे, इन्हें बनाने वाला कौन था, ये पढ़ के कहाँ से आए, वो मदरसा कौन था, वो अलीम कौन था, वो थे मौलाना समीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। तो शेखुल इस्लाम मदनी हुसैन अहमद साहब के? हाँ हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से। बताओ इन्होंने, अच्छा, और इन्होंने मुल्ला मोहम्मद उमर जैसे को पढ़ाया लिखाया। और जब सोवियत यूनियन बना हुआ था ना, सोवियत यूनियन का कब्जा था अफगानिस्तान पे, तब उन्होंने जिहाद की तालीम दी और इन्हें खड़ा किया कि तुम अपने मुल्क को कैसे आजाद करोगे। मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके 10 साथियों को, सिर्फ 10 तालिब इल्म थे ये। बताइए ये जज्बा फूकत है। हाँ एक समीउल्लाह जो है पूरे अफगानिस्तान को खड़ा करके गया। बताइए आप। ऐसे कितने नहीं होंगे दुनिया में। उनके जो शागिर्द थे वो तो हमारे यहाँ भी थे, हमारे वतन में। एक तो हमारे उस्ताद थे कारी हाजी हसन साहब, तफसीर बयान करते थे, मौलाना कारी हाजी हसन साहब। और एक थे कारी राही जुबैर साहब। ये गहराई की बात हमें तो मालूम है। एक दिन बाकायदा मैं न्यूज देख रहा था, एबीपी न्यूज, उसमें बाकायदा तालिबान की तारीख बता रहे कि तालिबान पैदा कहाँ से हुए, कहाँ से पढ़ा। ये तो मालूम है कि ये देवबंदी मसलक के लोग हैं। ये पूरा तालिबान जो है वो देवबंदी मसलक पे चलने वाला है। देवबंद वाले से टच है तो पूरा देवबंदी मसलक का है। पाकिस्तान से भी उनके ताल्लुक है और भाई हिंदुस्तान से भी है, नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के देवबंदी उलमा से तो उनका गहरा ताल्लुक है। और मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू आलिया को कई बार उन्होंने बुलाया अपने मतलब इस्लामिक कवानीन में अपनी रहनुमाई के लिए बुलाते हैं उनको, और दूसरे काबिरीन को बुलाया। तो मौलाना समीउल हक साहब जो थे पाकिस्तान के हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में, तो ये समझ लो कि ये 10 तालिब इल्म थे जो उन्होंने तैयार किए थे। और उनमें एक मुल्ला मोहम्मद उमर जो उनके वो थे सदर थे। उन 10 तालिब इल्मों से ये तालिबान जमात बनी है, तालिबान ग्रुप बना है, वहाँ से निकला ये तालिबान है। आप तो उनके एक खास शागिर्द का बता रहे हो, इतना बड़ा काम किया। इसके अलावा और भी बड़े बड़े उनके शागिर्द हुए हैं। और भी हैं, लेकिन बस हम चाहे फोन तो जबान खोल नहीं सकते। सफदर उकाड़वी साहब के बारे में बताया कि 8 बार कुरान की तफसीर सुनाई है उन्होंने।
हाँ मौलाना सफदर अमीन ओकाड़वी मदरसे के 8 बार तफसीर सुनाई, 8 बार तफसीर सुनाई। हाँ, मदरसे के 10th पढ़ाने वाले वो थे, टीचर थे। और ये भी शायद उनके शागिर्द थे। ये कौन है अभी, मुफ्ती अहमद खान पुरी साहब ढाबे में उनके शागिर्द हैं जी। मौलाना सफदर अमीन ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के एक टीचर, 10वीं तक का पढ़ाने वाला एक मुदर्रिस सरकारी स्कूल में। हाँ, ये कौन है आपके जो उस्ताद शेख नसीर साहब, ये भी उनके शागिर्द थे, शेख हुसैन अहमद साहब के। हाँ, उन्हीं के शागिर्दों में से हैं हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के। तो अफ्रीका तक में कैसे शागिर्द बनाए था। हाँ। अब देख लो, दुनिया में ऐसी ऐसी ज्वालामुखियां दबी हुई हैं कि जिन्हें अल्लाह ही बेहतर जानता, हमें भी नहीं मालूम है कहाँ कहाँ ज्वालामुखी दबी हुई हैं पूरी दुनिया में। अरे साहब, उन्होंने तो उनकी बड़ी खिदमत की थी, अशीर माल्टा मुफ्ती महमूद साहब की। जी, उनके साथ रहे, पूरी खिदमत की रंगून में। तो वो फैज था साहब हजरत हुसैन अहमद मदनी साहब को एक से एक शागिर्द पैदा करके गए साहब, एक से एक शागिर्द पैदा करके गए जी। मेरे ख्याल से बड़े बड़े ऐसे नामवर हैं कि जिनके नाम भी अभी याद नहीं हमें। बड़े बड़े, एक तो इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी और एक शेखुल अरब वल अजम, इनके 2 के शागिर्द बहुत हैं। और एक मौलाना फखरुद्दीन साहब, हाँ मौलाना फखरुद्दीन साहब, एक नसीर साहब के भी शागिर्द बहुत हैं साहब। तालिबान बना कहाँ से और तालिबान निकला कहाँ से, इसकी जड़ तक जो है नहीं मीडिया वाले पहुंच गए और हमारे लोगों को पता नहीं है। अच्छा, इनके कोई मुल्क नहीं है बरेलवियों का, ये सिर्फ इनका मुल्क है पाकिस्तान, एक वो कहते हैं नेपाल, और बांग्लादेश में तो सब देवबंद वाले हैं 95% बांग्लादेश में तो उतने ज्यादा नहीं है, नेपाल में उतने ज्यादा नहीं है। नहीं, नेपाल में है थोड़े, नेपाल में आधा है। इनका जो नेपाल में तादादी कितनी है मुसलमानों की, बहुत कम। वो तो कम में गए हूँ, थोड़ा बहुत ही है। हाँ, और बाकी आप देख लो, रंगून में जाके देख लो, या फिर जापान में, चीन में, फ्रांस में, इनका नाम निशान कम मिलता है बस। और दुनिया इंग्लैंड में जो गए ना, वो ये इंडिया के लोग गए, गुजरात के, वो लोग बरेली हैं, वरना इंग्लैंड में खास प्रॉपर नहीं है मौलाना। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, और किसी मुल्क का कोई जिला या कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ आलिम उलमाए देवबंद मौजूद ना हो। अब ये बताओ, ये इमाम हरम को काफिर मानते हैं, तो फिर इनके साथ में कौन रहेगा? नहीं, बस जब ये इमाम हरम को काफिर मानते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मानते हैं, नमाजें दोहरवाने का कहेंगे, 40 दिन की नमाजें दोहरा पड़ी हो, तो फिर उसका हजी कहाँ हुआ बेचारे का? जुमा नहीं पढ़ते उनके पीछे, बताओ जुमा की नमाज जुमा भी नहीं पढ़ते। एक कोटा से गया था मौलवी जी, रामपुर का है, वो कह रहा मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, कह रहा होटल में मैंने जुमा कायम कर लिया था, होटल में। तो मैं क्या, होटल में कैसे जुमा कायम किया? वहाँ तूने कहाँ मिंबर तूने बनाया, कहाँ तूने अजान दिलवाई, कहाँ तूने खुतबा पढ़ा? यहाँ तो तुम अजान कहते हो मस्जिद के बाहर दो, है वहाँ अजान कहाँ दिलवाई इसने, है? अच्छा, होटल में जुमा कहाँ से हो जाएगा साहब? वो कह रहा 7 जुमे वो पढ़ के आया होगा होटल में, 7 जुमे बताओ लगातार छोड़े उसने, और जमात की तौहीन की। इतने बड़े जो पूरी दुनिया के 50,000 आलिम नमाज पढ़ते हैं, वो क्या अंधे हैं? वो नहीं जानते थे कि अरब के लोग ऐसे हैं वैसे इमाम? मेरे ख्याल से अगर 1% अगर मानते हैं अपन, 50 लाख आलिमों में 1% अगर आलिम जाते हैं हाजियों में, तो 50,000 आलिम हो जाते हैं पूरी दुनिया के। जी बिल्कुल। वो सब के सब उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिसमें बड़े बड़े वली, कुतुब, अब्दाल, सब अपने लोग उनके पीछे नमाज पढ़ना अपने लिए सादत समझते हैं, सादत मंदी समझते हैं। पूरी दुनिया के आलिम सादत समझते हैं। हाँ, पूरी दुनिया का आलिम मुसलमान ये समझता है कि उनके पीछे, किसी भी इमाम के पीछे मैंने नमाज पढ़ ली। यहाँ तक कि जामे मिस्र के आलिम भी नमाज पढ़ते हैं। हाँ, अपने लिए सादा समझता है कि मैंने उसके पीछे रुकू। नहीं, अगर जामे मिस्र के आलिम नमाज नहीं पढ़ते ना, तो ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है कि जामे के आलिम नमाज नहीं पढ़ते वहाँ पर। क्योंकि बरेलवी इसको उछाल के कहते हैं ना, लेकिन बरेलवी इसको उछालते नहीं है। बरेलवी लोग उनसे फतावा हुसामुल हरमैन पे भी तस्दीक नहीं करवा सकते जामे वालों से। उन्होंने अभी मना कर दिया शरीफ साहब ने कि ये फितनाबाजी है नहीं होगी, आप वहीं जाइए, ये आपके इंडिया का मामला, आप इंडिया में रखिए, देवबंद वाले फलाने यहाँ फिरका परस्ती मत फैलाइए। हाँ, कह दिया ना उन्होंने शरीफ साहब ने। वो जा रहा था मैं फाते जामे अजहर बन जाऊं, वो एक गया था ना मुनाजरा करने। वो तो पैसा बहुत लेता है, तकरीबन 40,000 30,000, कहीं कम पड़े तो मुझे ये भी बता फेंक देता है, लिफाफा फेंक देता है। तो वो सोचे था मेरे आगे फाते अजहर का लेवल लग जाए। उसके बेटे पढ़ रहे हैं ना वहाँ पर, 1 या 2 बेटे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वो सोचे थे हम अपने अब्बू जी को फाते अजहर बना देंगे, तो इसके जरिए से फिर हम भी कमाएंगे दुनिया में, पैसा कमाएंगे। सही बात है। वो यानी फिर 50,000 रुपये लेंगे तकरीबन, तो 15 लाख रुपए महीने कमाएंगे आराम से। सही बात। अरे ये सब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं साहब, फ्री में तकरीर करते कहाँ? एक तकरीर कर देंगे साल में 1 बार या साल में 2 बार, तो वो कोई फ्री हुई? अरे साल में
जब माने कि तुम 15 दिन तकरीर करो फ्री में, 15 दिन नजराना ले लो, चलो भाई ठीक है मान लिया, 15 दिन फ्री में करो जब हम माने तुम्हें कि तुम आशिक रसूल हो। अरे 15 दिन तुम्हें 50,000 रुपये मिल रहा है, 7.5 लाख रुपए तो हो ही जाता है। हजरत इससे बड़ी की बात क्या होगी, कोई अगर मोहल्ले में मर जाए, खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाए और उसके इसाले सवाब के लिए अगर इन्हें बुलाने लगे तो उसमें भी इनकी हदियेबाजी होती है। अच्छा उसमें भी मांग रहा है? उसमें भी हदियेबाजी चाहे मख्फी तौर से हो, मख्फी तौर से होती है, और या इसाले सवाब हो, उसमें भी इनकी हदियेबाजी होती है। बताओ, मरहूम जो बेचारा दुनिया से चला गया, अब उसके लवाहिकीन या उसके वारिसीन जो है, कभी ना कभी तो भाई हफ्ते में, महीने में उसके लिए कुरान खानी कराएंगे, इसाले सवाब कराएंगे, किसी न किसी आलिम को बुला के अपने घर में बिठा के उससे दुआ वगैरह कराएंगे, उसमें भी हदियेबाजी चलती है हजरत। अरे साहब ये तो कहीं नहीं छोड़ते, तो मुर्दों को नहीं छोड़ रहे तो जिंदा को कहाँ से छोड़ेंगे? ये तो अगर हमारे सामने अगर कोई सवाल कर देगा ना हदिये का, मान लो हमें कहीं जाना है, किसी के इसाले सवाब में जा रहा मैं, या किसी को कुछ छोटी मोटी, भाई आ जाओ बस जरा दुआ करा दो मौलाना साहब, हमसे नहीं होती, आप करा दीजिए, तो हमारे अगर उसने हदिये का जिक्र भी कर दिया ना, तो समझ लो कि चेहरा हमारा जो है नहीं लाल सुर्ख हो जाएगा। हम क्या पैसे कमाने के लिए भाई तेरे यहाँ? अच्छा बरेलवी मसलक को ये उलमा क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे मालूम है आपको? जी, मुकर्रिर लोग वो समझ रहे हैं कि यार देवबंदी मसलक में हमें नहीं मिलेगा पैसा, इतना 5,000 से ज्यादा मिलेगा नहीं मिलता इधर कमाई है ही नहीं। लालच इनके लगाया कि हमें बरेलवी 50,000 देता है तकरीर का, देवबंदी नहीं देगा, नहीं देता। वो इन्हें भी मालूम है, हक तो इन पर भी जाहिर है कि यार सोचते पैसा कमाओ बाकी जान दो जो भी है, वरना ये भी जानते हैं कि यार फाजिल बरेलवी की किताबों में बड़ी बड़ी गलतियां हैं। और खुद मुफ्ती शरीफ अमजदी साहब ने लिखा है सफ़ा 36 में फतवा शारी बुखारी में कि 2 किताबों में अल-मलफूज अहकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो अहले इल्म से छुपी नहीं। और मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ने खुतबात मुहर्रम में लिखा है कि कंजुल ईमान की फहरिस्त में हमने बहुत सारी गलतियां निकाली, लास्ट में 6 बार निकालने के बाद भी 32 बाकी रह गई। ये मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी बरेलियों के मशहूर आलिम थे, उन्होंने लिखा खुतबात मुहर्रम के आखिर में लिखा। और ये भी लिखा है कि मुफ्ती आम के बहुत से खुलफा फर्जी बन के पीरी मुरीदी कर रहे हैं, जैसे लीची बाग में जो रहते हैं लाल दाढ़ी करके बरेली में, ये फर्जी है। ये लियाकत रजा उज्जैन वाला ये फर्जी है, ये उनके दामाद से खिलाफत ले लेके खिलाफत नामे कर करके पीरी मुरीदी कर रहे हैं। ये भी लिखा उसमें, आप भी जी के अंदर लिखा है, खुतबात मुहर्रम में आखिरी में लिखा हुआ है। यानी कितने उनके आला फाजिल भाई के बेटे के खिलाफत नामे ले लेकर के चले गए उनके दामाद से जो खलीफा नहीं है, वो पीरी मुरीद कर रहे हैं, झूठी पीरी मुरीदी। उनका मुरीद मान ही नहीं जाएगा जब तुझे उन्होंने खिलाफत नहीं दी, तू उनके दामाद से खिलाफत नामे लेके जा रहा है, तो पहले तेरी इजाजत मिली कभी तुझे पीर से? बिल्कुल। तो ऐसे भी कर रहे हैं पीरी मुरीदी। ये लखीमपुर वाला खीरी वाला एक हैगा, वो आता है, वो भी ऐसी पीरी मुरीदी करता है। तो साहब इनमें तो क्या है, पैसे की लालच बहुत ज्यादा है। बस ये जो है बस पैसे के पीछे पड़े हैं। अगर पैसा देवबंद वाले अगर इनको देना शुरू कर देना, एक मीटिंग कर लें देवबंद वाले, देवबंद में नस्बा में, कि साहब ऐसा है बरेलवी लोगों, आप हमारे अंदर आओ, हम तुम्हें 10,000 रुपये दे सकते हैं एक तकरीर का, ज्यादा नहीं देंगे, वही लिमिट से देंगे, 10,000 दे सकते हैं बस, ज्यादा। वो भी दूर से आओगे, करीब से आओगे तो 5 दे देंगे बस, बहुत है। मगर ये मंजूर नहीं करेंगे, ये सोचते हैं यार 10 में क्या हुआ यार, 20,000 तो हमें आपको। इनकी जो स्टेज होती है ना, वहाँ तो स्टेजों पे ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो 10,000 तो इनको इनाम में मिल जाते हैं साहब। हाँ, वो एक टोकरी पड़ी रहेगी और रुमाल पड़ा रहेगा, वो आएंगे लोग मुसाफा करते रहेंगे और नारे लगते रहेंगे, और तकरीर के एक जोश पे जो है ना रुपया बरसता रहेगा। तो इनको इनाम में मिल जाते हैं तकरीर के अंदर, किसी को 10, किसी को 20 है। सर अब उलमाए देवबंद में जरा सा कोई करके दिखा दे, स्टेज पे कोई 1 रुपया किसी के ऊपर लेना देना करके दिखा दे, वही फजीता हो जाएगा। हाँ ये सही कह रहा है, उलमाए देवबंद में जलसे में माहौल ही नहीं है 10 रुपए 20 रुपए देने का। कोई किसी की माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया जो स्टेज पे 1 रुपया भी किसी की तरफ फेंक सके या दे सके। हाँ ये कहीं सही कहा, ना नाच पढ़ने में देते ना वैसे ना बिल्कुल नहीं, फकत हराम है। वो कभी कभार नाच पढ़ने वाले को देते हैं, वो भी कभी कभार, ना तकरीर वाले को नहीं देते, वो भी बच्चों को हौसला अफजाई के लिए ताकि बच्चों को हौसला मिल जाए बस बच्चों को। सही कह रहा आप, ये माहौल अल्हम्दुलिल्लाह ये नहुसत अपने यहाँ ना है और ना कयामत तक होगी। इनमें तो खुद माहौल बनाते हैं, उधर वाले खामोश हैं, इधर से कुछ नहीं बोल रहा, उधर से कुछ नहीं आ रहा। हाँ, इशारों में अगर देखेंगे कि भाई बरसात नहीं हो पा रही पैसे की, तो इशारों में कोई ऐसी हदीस बयान कर देंगे, जैसे फैयाजी की कोई ऐसी हदीस या कोई वाक़या पैसा लोग दें। सही बात है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, इनसे दूर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है इनका मामला।
इंशाल्लाह ठीक है, फिर बात कर लेंगे, मैं डलवा दूंगा चैनल पे इसको, ठीक है इंशाल्लाह आप भी दुआ खैर में याद रखिएगा। ठीक है, ठीक अस्सलाम है, वालेकुम। ठीक है।